students, we are starting science of class 6, chapter number 4, that is sorting materials into groups. Okay, we have seen in our previous video different properties of material, है ना? We have discussed, we have classified materials depending on its properties. For example, depending on appearance, we classified substances into shiny substances and dull substances. Then on the basis of hardness, we divide them into soft substances and hard substances. Okay. After that, we have divided substances into two categories depending on their solubility, whether they are soluble in water or not soluble in water. Okay. यहाँ से हम आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. Which properties we have discussed previously? I am writing those properties here. Number one is appearance. Appearance means what? The substance is shiny or dull. The substance is shiny or dull. Shiny or dull दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी देख लो. मैं orally बता रही हूँ कि appearances you can divide it into shiny and dull. Okay. Secondly, the second thing is depending on hardness. Depending on hardness, you divide substances into two categories: soft and hard. Soft and hard. Afterwards, we divide substances on the basis of solubility. On the basis of solubility, we divide substances into two categories. That is what? Soluble substances and insoluble substances. Soluble substances means what? The substances which are soluble in water. है ना? We call those substances as soluble substances. And insoluble substances means the substances which are not soluble in water. Soluble means अगर आपने ग्लास में ऐड किया शुगर को और उसको स्टीर किया, and if sugar disappear completely, it means that sugar is soluble in water. If the substance do not disappear completely, then we call that the substance is insoluble. The substance is what? Insoluble. Okay. These things we have discussed in our previous video. Now we are going to see the next property, property number 4. That is whether the substance is what we say, floating on water or sink into water. So I am writing here what is the name of the property. In the same manner, means object float or sink in water. The substance float or sink in water, that we are going to discuss now. Abhi, what is the meaning of floating or sinking in water? फ्लोट का मतलब होता है, मतलब कोई सब्सटेंस जैसे है अपने पास कि एक ग्लास लो, ग्लास में वाटर डालो एंड आपके घर में जैसे आप ये बनाते हो ना, शरबत बनाते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसमें हम आइस क्यूब्स डालते हैं ना. अभी आइस क्यूब्स वाटर के अंदर जाते हैं पूरे कि उसके सरफेस के ऊपर तैरते हैं. आप बता सकते हो? अगर मेरे पास आइस क्यूब है, एक ग्लास है, ग्लास में मैंने वाटर डाला, ओके, इसके ऊपर अगर हम आइस क्यूब डालेंगे तो ये आइस क्यूब आपने ऑब्जर्व किए यहीं पे रहते हैं, नीचे नहीं जाते. सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसके सरफेस के ऊपर यहीं पे रहते हैं, नीचे नहीं जाते. व्हाट डज दिस इंडिकेट? This indicate that ice cubes float on water. What does this indicate? It indicates that ice cubes floats on water. जैसे ice cubes है ना, ice cubes floats on water. ऐसे there are many substances which float on water and some substances sink in water. For example, if I am having a rock, एक rock लो, पत्थर लो छोटा सा, पानी के अंदर डालो, क्या होता है पत्थर का? तैरता है वो पानी के ऊपर या डूब जाता है? करके देख सकते हो आप लोग. आपको स्टोरी पता है ना कौवे की और मटके की? उसको प्यास लगती है, पानी नीचे रहता है, वो एक
उसमें स्टोन डालते जाता है, स्टोन नीचे नीचे जाता है, पानी ऊपर ऊपर आता है। सुनी है, स्टोन वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं होते, दे आर सिंक इनटू वाटर। तो रॉक क्या है, रॉक वाटर में क्या होते हैं, सिंक इनटू वाटर। रॉक सिंक इनटू वाटर, रॉक सिंक इनटू वाटर। अगर मेरे पास कोई स्टील का स्पून है, स्टील स्पून, स्पून मेड अप ऑफ स्टील, इसका क्या होता है, स्टील का चम्मच एक पानी में डालो, क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा, है ना। स्टील स्पून इट आल्सो सिंक इनटू वाटर, इट आल्सो सिंक इनटू वाटर। ओके, उसके बाद में लेट अस टॉक अबाउट व्हाट, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग दिस चॉक, इफ आई पुट दिस चॉक इनटू वाटर, व्हाट विल हैपन, chalk, it will again sink into water, chalk sink into water, okay, chalk sink into water. Afterwards, suppose I am having a rubber ball, what happens to it, rubber ball, it again, रबर का बॉल लो आप, डालो उसमें, यहाँ पे देखो, हाँ, रबर का बॉल अगर है, it will not sink into water, it will float on surface of water, it will what, rubber ball will float on surface of water, float on surface of water. Next, rubber ball की जगह पे if I use plastic ball, what will happen, plastic ball, प्लास्टिक भी कैसे होता है ना, लाइट वेटेड होता है, और लाइट वेटेड होने की वजह से प्लास्टिक अल्सो फ्लोट ऑन वाटर, प्लास्टिक अल्सो व्हाट, इट अल्सो फ्लोट ऑन वाटर, प्लास्टिक बॉल फ्लोट ऑन वाटर। अभी इमेजिन करो, ये प्लास्टिक बॉल की जगह पे अगर स्टील का, आयरन का या कॉपर का बॉल होता, तो कॉपर पता है आप सभी को ना, कॉपर मतलब तांबा, जिसके बर्तन होते हैं घर में अपने, होते हैं पुराने जमाने में कॉपर के बर्तन, अभी भी हैं, अभी भी आपके घर में कई सारे कॉपर के बर्तन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर उसका बॉल होगा, आपने ये बॉल बियरिंग पता है आप सभी को, बॉल बियरिंग मतलब छर्रे, ठीक है, वो जो होता है दैट इज व्हाट विल हैपन टू इट, इफ आई पुट ए बॉल, इतनी छोटी साइज का भी अगर रहा ना आपके पास बॉल बियरिंग, वाटर में डालोगे वो सिंक हो जाएगा। इफ आई एम हैविंग ए बॉल बियरिंग, if I am having a ball bearing, then it will what, it will sink, it will sink into water। अभी साइज देखो, बॉल बियरिंग इतनी साइज का था, चौक की इतने साइज का, और प्लास्टिक का बॉल इतने साइज का है, बॉल बियरिंग डूब गया, प्लास्टिक का बॉल फ्लोट होता है वाटर में। साइज मायने नहीं रखती, कितनी साइज का ऑब्जेक्ट है ये मायने नहीं रखता, क्या मायने रखता है कि वो उसका सरफेस कैसे है, उसका नेचर कैसे है, सब्सटेंस की डेंसिटी कैसे है, सब्सटेंस हेवी वेटेड है या लाइट वेटेड है, इन चीज़ों के ऊपर क्या रहता है, ये चीज़ें मतलब ऑब्जेक्ट सिंक होगा कि फ्लोट होगा, वो डिपेंड करता है। अभी फिर से बॉल बियरिंग देखो, इतनी ही साइज की अगर बॉल बियरिंग है, ये पानी में डालोगे तो डूब जाएगी, लेकिन शिप कितना बड़ा होता है, शिप पता है ना सबको, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम बैठ के ट्रैवल करते हैं, मतलब कितनी बड़ी साइज होगी, एक आध बिल्डिंग जितना बड़ा होता है शिप, फिर भी डूबता है क्या, नहीं डूबता, क्यों, क्योंकि उसका नीचे का सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है। इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज है डिटेल में हम थोड़ा बड़ा होने के बाद में सीखेंगे, लेकिन जब सरफेस फ्लैट होता है ना, तो फ्लैट सरफेस की वजह से वाटर का उसके ऊपर एग्जर्ट होने वाला फोर्स ज्यादा होता है, एंड दैट सब्सटेंस डू नॉट सिंक इनटू वाटर। तो अभी देखो, हमने यहाँ पे स्टील का स्पून लिखा है, स्टील का स्पून सिंक इनटू वाटर, स्टील स्पून सिंक इनटू वाटर, लेकिन अगर स्टील की प्लेट होगी तो, इफ आई एम कंसीडरिंग ए डिश, फ्लैट डिश मेड ऑफ स्टील, तो जो फ्लैट डिश होगी ना स्टील से बनी हुई, वो सिंक नहीं करेगी, दैट विल फ्लोट ऑन, दैट विल फ्लोट ऑन वाटर। ओके, ये जो एक्टिविटी है यू कैन डू इट एट योर होम।
देखो एक जो बकेट होती है, बकेट में पानी लो, एक चम्मच लो, चम्मच उसके अंदर डालो, चम्मच डूब जाएगा. बट इफ यू आर हैविंग ए स्टील प्लेट, इफ यू आर हैविंग ए स्टील प्लेट, देन दैट प्लेट विल व्हाट, दैट प्लेट विल फ्लोट ऑन वाटर. अगर आपने कोई स्टील की प्लेट ली है तो स्टील की प्लेट क्या होगी, वो वाटर के ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी. आई होप ये एक्टिविटी आप लोग करके देखोगे. ओके, ये बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है. ओके, नाउ दिस वाज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट. यू कैन डिवाइड सब्सटेंसेस इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी whether the object float or sink in water. Some objects float on water and some objects sink into water. Okay? You understood this property? ये लिख लो सारे examples जो मैंने बताए हैं अभी. Then we will move to the next property. लिखो, पॉज करो वीडियो को और लिख लो. Okay? Now we are going to see the next property. Now we are going to see the next property. What is it? It is, does light pass through the substance? Okay, what is it? See, property number 5. Does light pass through the substance? Does light pass through the substance? Substance में से light pass होता है क्या? Depending on this, we can divide substance into two categories. इस property के ऊपर base भी हम क्या कर सकते हैं? We can divide substance into two categories depending on this property. We can divide substance into three types depending on the property that whether light can pass through it. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो. मेरा चश्मा है, ये मैं बहुत नजदीक रख रही हूँ आपके. इसमें ये मटेरियल देखो कैसे, ये मटेरियल में से आपको मैं दिख रही हूँ ना, दिख रही हूँ यार, तभी तो मेरी आंखें आप लोग देख सकते हो, है ना. तो ये जो मटेरियल है, ये इसमें से आपको पीछे का दिख सकता है, इसमें से आपको पीछे का दिख सकता है. ये जो मटेरियल है दैट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दैट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल. अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये एक चीज रख रही हूँ आंखों के सामने आपके. क्या इसमें से आपको मैं दिख रही हूँ? ये जो चीज यहाँ पे रखी है, क्या इसमें से मैं दिख रही हूँ आपको? जितना रीजन में ये चीज है ना, उतने रीजन में आपको क्या दिखेगा, सिर्फ दर्शन ही दिखेगा, उसके पीछे का आपको कुछ नहीं दिखेगा. बराबर है ना. तो ये जो चीज है दैट इज लाइट इसमें से पास नहीं हो सकती, इसलिए हमें पीछे का वी कैन नॉट सी. This kind of substance is called as opaque substance. This kind of substance is called opaque substance. और कुछ substances ऐसे होते हैं जिसमें से हमें थोड़ा सा दिखता है. कुछ substances ऐसे होते हैं जिसमें से हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा दिखता है. जैसे कि कलर पॉलीथिन होती है ना हमारे पास. अगर मेरे पास कोई कलर पॉलीथिन है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस पॉलीथिन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसमें से आपको क्लियर दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. मैं दिख रही हूँ ना थोड़ी थोड़ी, ज्यादा डिटेल में नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम दिख रहे हैं. तो ये जो सब्सटेंस है, इसमें से लाइट थोड़ा थोड़ा पास होता है. ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस सी देयर आर three types of substances depending on the property of does light pass through the substance. Answer is yes, no or partially. Okay, so depending on this there are three types of substances. First substance is transparent substance. Transparent substance means a substance through which light can pass and we can see behind it is called as transparent substance. A substance through which light can pass
allow us to see behind that object, see behind that object, is called transparent substance. Is called transparent substance. मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस जिसमें से लाइट पास होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें से लाइट पास हो सकता है, या ऐसा सब्सटेंस जिसमें से हमें पीछे का दिखता है, वो चीज के पीछे का दिखता है। जैसे मैं अगर आपके सामने खड़ी रहूं तो ये चश्मे के पीछे की मेरी आईज यू कैन सी, व्हाई? बिकॉज दिस ग्लासेस आर ट्रांसपेरेंट। ओके, सो what is the meaning of transparent substance? A substance through which air, light can pass and it allow us to see behind that object is called as transparent substance. Is called as transparent substance. इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे? देखो एग्जाम्पल में इसके आएगा सबसे पहला तो सबसे इजी आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लास ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद में वाटर ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद में एयर भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है ना? एयर है यहाँ पे रूम में भरी हुई, लेकिन मुझे आप देख रहे हो, मतलब एयर में से लाइट पास हो सकता है और हम वो चीज क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। एयर इज ट्रांसपेरेंट। ऐसे पानी में से भी दिखता है ना, पानी में एक ग्लास के कंटेनर में अगर कोई 5 रुपए का सिक्का गिर गया है, हम देख सकते हैं ना उसको। Why? Because water is transparent. Water is transparent. Okay? Air, water and glass, these are examples of transparent substances. आप और ढूंढ सकते हो, आपको अगर आजू बाजू में ऐसे कोई सब्सटेंसेस दिखते हैं जिनमें से आप पीछे का देख सकते हो, उसके they are called as transparent substance. Okay? So first type of substance is transparent substance. Now let us move to the second type. लिख लो, ये पॉज करो वीडियो को और लिख लो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ओके, जो सेकेंड टाइप का सब्सटेंस है दैट इज the second type of substance B is what? It is opaque. Opaque substance. Opaque means what? ऐसा सब्सटेंस जिसमें से हमें पीछे का नहीं दिख सकता या जिसमें से लाइट पास नहीं होती, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ओपेक सब्सटेंस। ए सब्सटेंस थ्रू विच light cannot pass, and we cannot see behind it, is called an opaque substance. जो सब्सटेंस में से लाइट पास नहीं होता, जो सब्सटेंस में से हमें पीछे का नहीं दिखता, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड के पीछे क्या है? दीवार है, हम देख रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दिस मटेरियल इज ओपेक। दरवाजा बंद है, दरवाजे के पीछे का आपको दिखेगा क्या? आप बाहर का देख रहे हो क्या? बाहर का कुछ दिखेगा क्या आपको? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? वुड। वुड इज एन ओपेक सब्सटेंस। ओके, अगर इधर के साइड में मुंह होते हैं तो आप देख सकते हो विंडो में से आपको पीछे का दिख रहा है कि विंडो के बाहर का? अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो, एक तो विंडो है और दूसरा कर्टन है। जहां पे कर्टन लगा है वहां पे आप बाहर का नहीं देख सकते हो, लेकिन जहां पे कर्टन नहीं है आपको बाहर का सीन नजर आ रहा है ना? Why? Because it is made up of glass. ग्लास जो है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है। कर्टन कैसे है? कर्टन जो सब्सटेंस है वो ओपेक है ना? सो ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच का आई होप आप लोगों को फर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट द एग्जाम्पल। ओपेक का एग्जाम्पल यू कैन राइट वॉल, यू कैन राइट वुड, यू कैन राइट रॉक, you can write chair, table,
all the substances through which light cannot pass and we cannot see behind that substances are called as opaque substances. Okay, so this is about opaque substance. लिख लो इसको भी नोटबुक में. इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हम करने वाले हैं. मैं आपको कुछ एक्टिविटीज की वीडियो सेंड करने वाली हूँ जिसमें ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो. ओके, सो ओपेक सब्सटेंस हो गया. देन थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंस इज ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस. ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस, सी. Translucent substance means a substance through which light can partially pass. मतलब थोड़ा थोड़ा जाएगा. Through which we can partially see. Behind it, उसके पीछे का हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है. Partially see behind it is called a translucent substance. Is called a translucent substance. इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? इसके एग्जाम्पल में आएगा, देखो, जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा पीछे का दिखता है, वो ट्रांसलूसेंट होता है. एक आप खाना खाते हो टिफिन वगैरह में, तो वो सपोज ऑयल बाहर निकल गया तो आप क्या करते हो, नीचे पेपर वगैरह रखते हो. वो जो पेपर होता है ना, ऑयल चिपका हुआ पेपर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ऑयली पेपर इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. some types of plastics are translucent object, and what, and colored glasses, they are also example of translucent object. तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला आएगा ऑयली पेपर, देन प्लास्टिक, एंड देन उसके बाद में क्या आएगा, ऑयली पेपर, प्लास्टिक एंड कलर्ड ग्लासेस. These are examples of what? These are examples of translucent objects. ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन हमने कवर किया है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव सीन ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद में ओपेकनेस एंड ट्रांसल्यूसेंटनेस. यहाँ पे आपका फोर्थ लेसन जो है वो होता है फिनिश्ड. फोर्थ लेसन यहाँ पे फिनिश्ड होता है. आपको ये करने के बाद में, ये जो है लास्ट के नोट्स ये लिख लो अपने नोटबुक में. लिखने के बाद में होमवर्क में सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो है रीड लेसन. ओके, लेसन रीड करने के बाद में सेकेंड थिंग आप क्या करोगे, लेसन रीड करने के बाद में सेकेंड थिंग आपको करना है कि इसके जो हार्ड वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स निकालो. ज्यादा नहीं आएंगे, मेरा चौक भी खत्म हो गया, पता है. हार्ड वर्ड्स लिखो 20, और लिखने के बाद में जो एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करनी है वो हम क्या करेंगे, कल करेंगे. तो क्वेश्चन आंसर्स आपको तभी आ सकते हैं जब आपका लेसन कैसे हो, रीड किया हुआ हो. ठीक है, तो पहले लेसन रीड करो, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.